Ms. Shivani Fukan, convener, Women Development Cell, and Dr. Syed Mubin Jehra, Preeti Jain, and other colleagues who are member of WDC and invited speaker for this workshop. In fact, I would like to congratulate you all, and especially Shivani, for taking uh, pains to organize these kind of workshop for the benefit of students uh, in the banner of Women Development Cell of the college. I'm very glad to see your topic as stand up against street harassment. In fact, there is a trend we see in the society that these kind of harassment are being done on the street and in the other parts of society, and it should be banned. Although there are provisions, there are laws, everything is there, police is there, everything is there, but still it happened. So it is a very important thing to discuss, and especially youth should understand, students should understand how to behave in the society with the uh, ladies and with the other gender people. So thank you for inviting me and giving me this opportunity to speak. And once again, I congratulate you all for organizing this workshop, and I hope that these kind of workshops will continue in future also. So my best wishes. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you for taking time out. Thank you for always sort of being very supportive and for your very encouraging words to each one of us. Thank you very much, sir. With that, I will begin with the official sort of proceedings for the day. As I had earlier announced, first of all, a few housekeeping rules. Please do try and keep your cameras on. It's always nice, because we are all in this online mode. It feels nice to have some sort of human interaction. There's already a link which has been shared in the chat box. Please fill that in. Make sure your email ID is filled correctly. At the end of the session, another link will be shared in the chat box which you need to fill, especially if you want a certificate for this training workshop. It is a workshop, so it is going to be interactive. So please do post your queries, observations, experience in the chat box as and when there is a need to. With that, I would just begin with a short introduction. This is, in this academic session, this is the first program that the Women's Development Cell of ARSD College is organizing. It is We hope to organize many more such workshops, lectures, etc. in time to come. At the onset, I would really like to express my heartfelt gratitude to our principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, for his support, for always sort of having our backs, for always sort of guiding us, encouraging us, pushing us to do more and more, try out different things, to sort of to venture out into different areas. A huge thank you to each and every member of the WDC, Mubin, Preeti, Nidhi, if I'm forgetting Rajkumar, and if I'm forgetting any names, forgive me. Old age can't seem to. Manisha, Manisha, Swati. yes, Manisha and Swati. Now I think I've got everybody's names. Yes, Manisha, Swati, Preeti, Mubin, Rajkumar. Thank you all very much. Thank you to the student members, especially those who have helped in sort of in a lot of work, like making the poster or creating the registration link and otherwise. And to each one of the participants, because this is a workshop which is meant for you. So thank you for for your participation. Um, this is what Audre Lorde had said: I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. In 1991, scholar Elizabeth A. Kissling called street harassment
a form of sexual terrorism, as one can never know when it can happen or how far it can escalate. In an international survey in 2018, conducted across 40 countries, India topped the global ranking of most dangerous countries for women. In New Delhi, 95% of women aged between 16 and 49 report feeling unsafe in public spaces. A survey by Jagori in Delhi found the majority of incidents of street harassment took place in broad daylight. Only 1 in 13 cases of sexual harassment in India's capital and 1 in 9 in Mumbai were reported to the police. At DU, this is a study done by Girija Borkar from the World Bank in 2018. At DU, women choose to attend lower quality colleges to avoid sexual harassment while traveling to and from colleges. There are innumerable such reports, and they all prove one thing. Sexual harassment, of which street harassment is a part of, is an epidemic. Widely prevalent, not much talked about, and rarely addressed. The fact that such harassment is normalized, think of the numerous Hindi film songs and scenes where the hero woos the heroine by stalking her, commenting on her behavior, appearance, how he appears out of nowhere before her, maybe with a rose, and you will understand how socially and culturally and to the extent to which sexual harassment is being normalized in our culture especially. It is time to say no, to stand up against it. How do we do that? This is what this training workshop is about, because we need to equip ourselves with tools which will enable us to no longer be passive when street harassment does happen to us or to anybody around us, to speak up and stand up for ourselves as well as those around us. And today I'm very happy to see, when I look at the participants, that there are a few boys too, because street harassment is not only a problem that, it's not gender specific. I think it is a problem for anybody who respects women, who wants their society to be a safe one, who wants our public spaces to be a safe one. So this is what we are here for, to train ourselves to stand up and to speak out and to combat street harassment. With these words, I will hand it over to Preeti, who will introduce us to Breakthrough, the NGO who has very generously come forward to conduct this workshop, and Uzma, who is the trainer for this workshop. Preeti, over to you. Thank you, Shivani. Good morning, everyone. Today we have all gathered here for a very important issue: stand up against street harassment. Say no if someone asks you or says something that makes you uncomfortable. You have to vehemently stop it. Today, street harassment has assumed greater proportions, and the time has come to stand up to it. When we turn out to be mute speaker of this harassment, it adds to the trauma of the person being harassed. Today, we need to break this silence, overcome the fear, and voice against such heinous acts of crime. In this venture, Breakthrough Trust, a known NGO in partnership with L'Oréal Paris and Holbeck Foundation, have joined hands together to ensure our self-esteem. They have undertaken a stupendous task to stand up safely to street harassment. Today, we have with us Uzma from Breakthrough Trust to sensitize all of us about this issue. Uzma is a trained and certified trainer by Holbeck Foundation. Currently, she is pursuing Masters in Social Work. She has worked as a facilitator in Action India NGO project Khelo Mat Sikho Zabardast by Gali Gali Sim Sim Sesam Workshop India. She has also worked as facilitator in the same NGO on the project of Green and Clean Delhi by DXC Technology.
In this, she was working with women and children and taught them how to keep our environment clean and green by separation of garbage. Recently, she is working as a fellow trainer in Breakthroughs Project and conducting training sessions on street harassment intervention across Delhi NCR. So let's not waste time and welcome Uzma to sensitize all of us about this issue. So I'm handing over this to Uzma. Yes, first of all, a warm good morning to all of you, all the dynamic personalities, and I really thanks to everybody who joined this training session. And it will be very great for everyone because all the things I think almost ma'am ने सब कुछ बता दिया है मेरे बारे में भी exactly. And I really thanks all teachers and respecting members and the all participants जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ली और मुझे भी दिया और आई रियली ग्लैड टू बी हियर सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट द सेशन आई विल शेयर माय स्क्रीन it's visible now. Yes, it's visible, Uzma. Okay. Okay, so guys, welcome to Stand Up Against Street Harassment in partnership with L'Oreal Paris, Hollaback and Breakthrough. So, आप सभी का स्वागत है आज के इस स्टैंड अप कार्यक्रम में। आज की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं सेशन की, तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछकर इसको शुरू करना चाहूंगी। एंड द क्वेश्चन इज दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ वुमेन विश्ड समवन हेल्प देम व्हेन दे वर स्ट्रीट हैरेस्ड? Like 15% or 79%, 45% और 62%. So मतलब जब हैरेसमेंट हो रहा था किसी लड़की या किसी महिला के साथ, तो कितने लोगों ने, कितनी महिलाओं ने ये चाहा होगा कि काश कोई मेरी मदद करता उस टाइम जब हैरेसमेंट हो रही थी, तो शायद मेरे साथ ऐसी हैरेसमेंट ना हुई होती। तो आपके अकॉर्डिंग कितनी प्रतिशत महिलाएं होंगी? 15, 79? आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। $79, $79, $45, $62. Okay, so let's see the actual data of this. So here is the actual data, like only 25% say someone helped and 79% wished someone helped. Exactly, you can see the gap 25 and the 7, it is almost 80. तो हम यहाँ पे गैप देख सकते हैं कि 25% महिलाओं को सिर्फ हेल्प मिली जब उनके साथ कोई उन्हें हैरेस कर रहा था, कोई हैरेसमेंट उनके साथ हो रही थी। लेकिन 79% जो महिलाएं थी वो अपने दिल में इस बात को लिए रही कि मतलब वो देखती रही मदद की निगाहों से, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की और ऐसी महिला सिर्फ विश करती रह गई इस चीज के लिए कि काश कोई उनके लिए मदद करता तो शायद उनके साथ हैरेसमेंट रुक जाती, कोई दखल देता तो ऐसा ना हुआ होता। So let's see our mission of today. So to walk out of here ready to safely respond when we see street harassment or when we experience it ourselves. तो जब हम हैरेसमेंट देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद, इस सेशन से निकलने के बाद, जब हम हैरेसमेंट देखते हैं या हम खुद भी उसमें मतलब उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम कैसे उसमें सेफली रिस्पॉन्स कर सकते हैं अपनी सेफ्टी को एक्सेस करते हुए। ओके, सो we are going to accomplish this mission by 4 points, like depending our understanding of street harassment. सबसे पहले हम जानेंगे कि street harassment कैसा दिखता है, कैसा होता है, and second thing is that learning how to intervene if you witness harassment. हम ये सीखने की कोशिश करेंगे दूसरे पार्ट में सेशन के कि हम दखल कैसे दें, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है हम मदद करना चाहते हैं, हैरेसमेंट में दखल देना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज दैट लर्निंग हाउ टू रिस्पॉन्ड इफ यू एक्सपीरियंस हैरेसमेंट। अब हमने सीखा कि जब किसी और के साथ हो रहा है तब हम कौन से एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर हमारे साथ हैरेसमेंट होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम कैसे उसमें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। फोर्थ वन इज दैट practicing some scenarios I will give in the end of the session and we will discuss it
फॉर लाइक प्रैक्टिसिंग। ओके, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं कुछ सिचुएशंस दूंगी आपको, तो उससे ये पता चलेगा हमें कि हमने कितना लर्न किया सेशन में, अब हम कितना सीख पाए हैं, हम कैसे दखल दे सकते हैं। Let's move forward to another slide. Before we start, move into 3 points. Okay, we are talking about harassment and violence today. आज हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव इश्यूज पर बात करने जा रहे हैं. Mostly people avoid to talk about these kind of topics. Okay, so do what you need to do, take care of yourself. तो हम सब अपना ख्याल रखेंगे ट्रेनिंग के दौरान. काफी बार ऐसा होता है कि ट्रेनिंग के दौरान काफी सारी चीजें रिकॉल होती हैं, आपको याद आए कि मेरे साथ 1 महीने पहले हुआ था ऐसा, या 2 महीने पहले. आपको थोड़ा एंजाइटी फील हो या डिप्रेशन लगने लगे, तो आप 1-2 मिनट के लिए मीटिंग को, ट्रेनिंग को लीव कर सकते हैं और आप थोड़ा रिलैक्स होके, थोड़ा कंफर्टेबल होके आप फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं. दिस ट्रेनिंग इज इंटरैक्टिव. ठीक है, और कुछ सवाल मैं पूछूंगी जिसके जवाब आप चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे देंगे, और ट्रेनिंग इंटरैक्टिव रहेगी. ऐसा नहीं होगा कि लाइक मैं जैसे लेक्चर दिए जा रही हूँ और आप सुन रहे हैं. जब ज्यादा इंटरेक्शन होगा, द ट्रेनिंग विल बी इंटरेस्टिंग एंड द एक्सपीरियंस विल बी शेयर ऑल्सो. एंड third one is feel free to ask any question anytime in the chat box. And if you don't feel comfortable messaging the whole group, अगर आप थोड़ा comfortable feel नहीं कर रहे हैं सबके साथ शेयर करने में अपना एक्सपीरियंस को या किसी सवाल को, तो आप पर्सनली भी मुझे, आई विल गिव द ऑफिशियल ईमेल आईडी एज वेल एज फोन नंबर, एंड ऑल्सो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं. आई विल प्राइवेटली रीड इट एंड आंसर योर क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स move forward again. So today's presenter is Uzma Trainer Brishu. This is me, and जैसा कि मैम ने मेरे बारे में काफी कुछ बता दिया था, उसके अलावा सेपरेटली कि why I care for this issue, मतलब मुझे क्यों फील हुआ इसके बारे में, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि चीजों को दबा दिया जाता है ना, ज्यादा इस पर बात नहीं करी जाती. हमें ही एक, हमारे साथ ही हैरेसमेंट हो रही है और हमें ही सिखाया जा रहा है कि ऐसे करो या ऐसे मत करो, तुम ही मत जाया करो उस जगह पर, उस रास्ता बदल लो, टाइम चेंज करा लो, घर बदल लेंगे. तो हमारे साथ हो रहा है और हमें ही चेंज करने की जरूरत है. हैरेसमेंट उसने किया है तो उसे चेंज करने की, उसको रोकने की जरूरत है वहां पर, क्योंकि आज उसने मेरे साथ किया है, मैं रास्ता बदल के चली जाऊंगी, लेकिन उस रास्ते से कोई और जाएगा तो वो फिर भी उसके साथ ऐसा ही कुछ करेगा. तो वी विल हैव टू stop this and intervene and stand up against street harassment. तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. लाइक मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, शायद 10 या 11 साल की होंगी उस टाइम. तो मुझे इतना, मतलब इतनी उम्र में तो पता नहीं होता कि क्या अच्छा है या क्या बुरा है, क्या सही और क्या गलत है. तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर पर कोई और रहा करते थे, अंकल आंटी. तो छोटे बच्चे को तो वैसे ही थोड़ा मतलब प्यार कर लिया या कुछ दिला के लिया है ना, इस तरह से उसको पैम्परिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से चलता था, दैट्स फाइन. मैं भी उनके बच्चों के साथ खेला करती थी, वो हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाया करते थे. तो जो अंकल थे उनका बड़ा अच्छा, मतलब ठीक ठाक सा वो था कि बहुत आदर्शवादी पुरुष जिसे कहा जाता है. ठीक है, लेकिन वो अंदर से क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं किसी को लेके, वी डोंट नो एनी, मतलब वो तो हमें किसी के बारे में नहीं पता. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो बात मुझे आज भी याद है, इतने सालों के बाद भी, और शायद मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो ऐसा हुआ था कि वो मतलब सामने खड़े थे. मैं उनके घर गई थी उस दिन, कोई नहीं था घर पर, ऐसे ही खेलने के लिए मतलब जाया करते थे, तो मैं गई उस दिन तो था नहीं कोई घर पे. ही इज ट्राइंग टू फ्लैशिंग द प्राइवेट पार्ट्स, बट आई डोंट नो, मतलब अंदर से मुझे खुद ऐसा लगा कि ये बहुत गलत चीज है, ये तो गंदी चीज है, मतलब मुझे देखना नहीं चाहिए इसको, और इट्स इज वेरी शेमलेस थिंग. मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, ये तो नहीं पता था कि ये बिल्कुल गलत ही है या सही ही है, बट मुझे अंदर से ऐसी वाइब्स आई, ऐसी फीलिंग आई कि नहीं ये गलत है, और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. देन मैं वहां से भाग गई फौरन, बहुत जल्दी से भागी कि कहीं मुझे पकड़ ना ले ये. और उस दिन के बाद मुझे इतना डर फील होने लगा, इतना ज्यादा घबराहट, कि मैं घर में ही बंद हो गई, मतलब बाहर जाना बिल्कुल छोड़ ही दिया हो. जैसे घर वाले पूछ रहे थे कि क्या बात है बेटा, बाहर नहीं जा रही हो, उस तरह से मैंने कुछ बताया भी नहीं, उन्हें शेयर भी नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था एग्जैक्ट कि हुआ क्या वो. तो दिस इज अ रियली
experience from my side that I faced in my childhood, but it is very very bad because harassment always hurts and बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस चीज से। भले ही आज भी मैं बता रही हूँ तो मुझे फिर से वही चीजें मेरे आंखों के सामने आ गई हो और मुझे सब याद आ रहा हो, वो फिर से फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं हैरेसमेंट जैसी, इसको रोकने की जरूरत है और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। सो इसके साथ बहुत सारे जो लोग हैं, वो काफी सारे लोग इसी तरह ट्रेनिंग सेशन में अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जैसे मैंने किया था। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस, एनी स्टोरी रिलेटेड टू योर हैरेसमेंट एंड यू कैन शेयर विद मी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जैसा मैंने ब्रेक थ्रू, आई एम वर्किंग ब्रेक थ्रू। तो ब्रेक थ्रू जो है वो पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है और ये महिलाओं और लड़कियों के मुद्दों को लेके काम कर रहा है। तो ये 15 स्टेट एंड 15 डिस्ट्रिक्ट्स में वर्किंग है अभी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। ठीक है, तो ये जो आप 2 कैंपेन देख रहे हैं, ये ब्रेक थ्रू के द्वारा चलाए गए कैंपेन है जो काफी फेमस भी हुए थे। यूट्यूब वगैरह में इनकी काफी वीडियोस थी, लाइक रिंग द बेल। इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बमन ईरानी थे और दखल दो के राजकुमार राव जी हैं। ठीक है, जब आवाज उठे तब हिंसा रुके, तो जब हम दखल देंगे तभी हम उस हिंसा को खत्म कर सकेंगे। इसका बेसिकली मोटिव यही है, दखल दो। अगर कहीं हैरेसमेंट होती है, कोई वायलेंस हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप इंटरवेन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज होला बैक। So as the ma'am told about the Holaback, it is an international NGO, and obviously at Holaback we are building a world where we can all be. So Holaback की जो शुरुआत हुई थी ये 2005 में हुई थी और इसके जिन्होंने इसको फाउंड किया Holaback को, वो जो है हम जैसे ही यंगस्टर्स थे। उन्होंने हैरेसमेंट की स्टोरीज को कलेक्ट करना शुरू किया और कलेक्ट करते करते ये रियलाइज हुआ कि मतलब कितना डाटा आ गया इस कंट्री से भी, उस कंट्री से भी, और कलेक्ट करते करते इसकी तादाद हजारों में पहुंच गई। तो जब होलाबैक ने देखा कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कम नहीं हो रहा, ऐसा ना हो कोई दिन ऐसा है कि हर पैदा होने वाली लड़की या हर कोई ये कहे कि हाँ मैंने अपनी जिंदगी में इसको फेस किया, मैंने भी इसको सहा। तो हम एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हु वी आर एंड वेयर वी आर। सो यू आर मस्ट बी वंडरिंग फॉर द सर्कल्स दीज। तो मैं बता देती हूँ कि ये जो ऑरेंज सर्कल आप देख रहे हैं, ये होलाबैक का वर्क शो कर रहा है ओवर द वर्ल्ड। जो होलाबैक है उसका ये काम है पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके होलाबैक इस ट्रेनिंग को स्प्रेड कर रहा है ताकि हम सब स्टैंड लें हैरेसमेंट के खिलाफ। ठीक है, तो ये जो ज्यादा बड़े सर्कल हैं वो ये हैं कि होलाबैक का इतना काम हो चुका है उस कंट्री में, और जो ये छोटे सर्कल हैं वो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी स्टार्ट किया है, अभी शुरुआत हुई है, आगे इसको और सेपरेट स्प्रेड करना है। बाकी iHolaback.org, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ होलाबैक। यू कैन सर्च, यू कैन गूगल इट, और आप इस पे काफी सारी कहानियां देख सकते हैं, एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं लोगों के, और सेशन लेने के बाद भी उन्होंने किस तरह मतलब 5D जो मेथोडोलॉजी आज हम सीखने वाले हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे रिस्पॉन्ड किया था हैरेसमेंट के दौरान, उन्होंने वो भी शेयर किया है यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर seeing what are the examples of street harassment. जो स्ट्रीट हैरेसमेंट होता है उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? Write down the answers in the chat box. I will give you some hints like comments, leering, unwanted touching, song, kissing, hugging, stalking or following, showing pornography against one's will, and flashing private parts, demanding sexual favors, absence calls and messages, vulgar gestures, whistling. So these are the okay, chat box में भी आ रहा है comments करना, ठीक है। Following, very good, आदित्य ने लिखा है comments following. Is anything else? Please share in chat box because मुझे फील होगा कि हाँ चैट बॉक्स में कुछ आ रहा है, तो आई थिंक मैं अपनी बात समझा पा रही हूँ। दिस ट्रेनिंग विल बी इंटरैक्टिव।
Okay, so here is a question, is that what forms of street harassment have you experienced? Multiple choice question है. Social comments towards a woman. Exactly. आजकल सोशल मीडिया पे भी काफी स्टॉक किया जाता है, अननोन मैसेजेस, अननोन कॉल्स होते हैं. आपके हिसाब से क्या क्या हैरेसमेंट जो है वो आपने एक्सपीरियंस किया है? कॉलिंग व्हाइल वॉकिंग. एग्जैक्टली आयुषी. आकाश, अब्यूजिंग, सेंडिंग वल्गर मैसेजेस और स्टिकर्स. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, साथियों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है. विस्लिंग, एग्जैक्टली. पुशिंग इन मेट्रो, स्टेयरिंग कॉन्शियसली. ओके, सो हियर इज अ वीडियो ऑफ लाइक एग्जांपल्स ऑफ हैरेसमेंट. अब हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद में पूछती हूँ कि हमने वीडियो में क्या क्या देखा. We see it happen everywhere, at any time. 78% of women have experienced sexual harassment in public spaces, like a suggestive comment, a sexually explicit touch, an inappropriate gesture, or being followed. And it threatens our self-worth. It takes over who we are. We see it happen, but stay cautiously silent and uncomfortably look away. maybe because we don't know what to do. How to help or how to combat the situation. I said I'm fine, so The time has come to keep our heads up and to stand up for each other against street harassment. And everyone can be part of the solution. Sorry, I'm gonna pay for it. excuse me. Is this yours? Can you help me, please? I'm looking for this direction. L'Oreal Paris and the nonprofit organization Holla Back have joined forces to teach men and women how to combat sexual harassment in public spaces with simple but impactful actions. Take a stand and learn how to combat street harassment at standup.l'orealparis.com because we are all worth it. ओके, सो वीडियो समझ आई या मैं दोबारा से प्ले करूं? अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई है, so please share in the chat box something which you saw in the video. What is happening in the in video? What you saw? Is there any harassment? Akash, understood. Okay. What you saw in the video? Is there anything for share? Standing for each other. Exactly. Not that I show how we can help, because sometimes we think like harassment जैसी चीजों को मतलब पुलिस कंप्लेंट करें या फिर फिजिकल वायलेंस करें, इन चीजों को तब रोका जा सकता है. कभी कभी हमारी ये सोच बनी हुई है शुरू से, लेकिन नो, हम कुछ छोटे ऐसे स्टेप्स लेकर भी काफी सारी चीजों को रोक सकते हैं, हैरेसमेंट जैसी चीजों को रोक सकते हैं, जिसमें ज्यादा बड़ा इशू ना क्रिएट करते हुए, कोई फिजिकल वायलेंस ना क्रिएट करते हुए हम कैसे इसमें दखल दें सेफली और अपनी सेफ्टी को एक्सेस करते हुए. सो लेट्स सी अनदर स्लाइड, लाइक इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रीट हैरेसमेंट. सो स्ट्रीट हैरेसमेंट होता है, किस किस तरह का होता है? अनदर प्लेसेस, इसका कोई एज लिमिट नहीं होता है ना, कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई फिक्स प्लेटफॉर्म नहीं है. हैं, तो जो इम्पैक्ट्स हैं स्ट्रीट हैरेसमेंट के, कुछ इम्पैक्ट्स भी होते होंगे क्या अकॉर्डिंग टू यू? Here is the question, what are the impacts of street harassment? Like anxiety, depression or PTSD, post traumatic stress disorder, या फिर limited mobility, skipping school or work, moving homes, reduced quality of life, या all of the above. What is your concern about the impacts of street harassment? In the chat box, here is something. As well as other women, it's not good to have a shirt out of this. All of the above, all of the above. Exactly. यानी कि हम में से सभी ने मोस्टली चीजों को फेस किया है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में. कहीं आते जाते हम इन चीजों को देखते हैं, फेस करते हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, ये थोड़ा मोटा मोटा है कि फिजियोलॉजिकली एंड मेंटली हेल्थ. सबसे पहले जो हमारा इसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो हमारे मेंटल हेल्थ को
सबसे ज्यादा ये अपनी तरफ खींचता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है, लाइक एंड सोशल फाइनेंशियल एज वेल एज लाइक लिमिटेड मोबिलिटी, है ना, लिविंग होम्स, यहाँ तक लिविंग जॉब एंड होम भी। लोग काफी बार क्या करते हैं, अपने होम को वहां से मूव कर लेते हैं कहीं और, या फिर जॉब छोड़ देते हैं वहां से। क्यों? क्योंकि हैरेसमेंट इतना एक्सट्रीम हो जाता है, बर्दाश्त के बाहर बात आ जाती है कि लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके चलते लोग कुछ ऐसी चीज कर लेते हैं, कोमा मतलब साइको, खुद अपने अंदर जीने लगते हैं किसी से शेयर ना करते हुए इन चीजों को। तो ये कोई, हम खुद ही इन चीजों को नॉर्मलाइज कर देते हैं कभी कभी। यार देख ही तो रहा था, बस कमेंट ही तो कर दी थी, कोई गाना ही तो गाया था, कुछ किया थोड़ी था। रेप जैसे केसेस पर हैरेसमेंट शुरू होता है स्टॉकिंग या कमेंट से, लेकिन वो उसका एंड एक बड़े लेवल पे जाकर होता है काफी सारे केसेस में। सो कम्युनिटी लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रिड्यूस करते हैं हैरेसमेंट के चलते। बिकॉज अगर मेरा मन है आज मैं बाल खोलकर या मेकअप करके या फिर मतलब अच्छे से ड्रेसअप होके कहीं जाऊं, लेकिन रास्ते में कहीं हैरेसमेंट होती है, तो मेरे मन में ये गिल्ट आएगा कि शायद मैंने ऐसे कर रखा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ हो, अब मैं कल ऐसा नहीं करूंगी या ऐसा करके नहीं जाऊंगी। सो दिस इज, वी आर रिड्यूसिंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारा मन था वो हम नहीं कर रहे बिकॉज द हैरेसमेंट हो रही है हमारे साथ, इसलिए। तो हम इस हैरेसमेंट जो हो रही थी, इसको जो हमने ये ट्रेनिंग कंटेंट पूरा किया गया, होला बैग को जो इंस्पिरेशन मिली, इंस्पिरेशन जो है वो एक ट्वीट से मिली, और ट्वीट में आपके लिए पढ़ देती हूँ। ये निकोलेटा नाम की एक लेडी है जिन्होंने ट्वीट करके ये पूरी दुनिया को बताया, ठीक है। तो रिकी was just acting like he wasn't my BF at the gym, saying to me, "You look nice in those leggings. Can I take you out sometime?" This girl that I don't know comes up to me and I informed her he was my BF, but girl, I appreciate you. तो निकोलेटा को शायद जो उसका BF था वो जिम में ऐसी मजाकिया तौर पर उसे कह रहा हो कि आप बड़ी अच्छी लग रही हो आज इस लेगिंग में, क्या हम कहीं बाहर चलें। जो सामने से लड़की देख रही थी उसको ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, कोई हैरेसमेंट कर रहा है, इस लड़की को परेशान कर रहा है। तो वो उठी, कॉन्फिडेंस दिखाया उसने, और उसने, जो लड़की उसे जानती भी नहीं थी निकोलेटा को, ना निकोलेटा उसको जानती थी, लेकिन फिर भी उसने खड़े होकर इंटरवेन किया, दखल दिया, और निकोलेटा से कहा, क्या तुम तैयार हो यहाँ से चलने के लिए? फिर निकोलेटा ने कहा, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये मेरे साथ कर रहे थे, ये एक मजाकिया तौर पे कर रहे थे, लेकिन मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। बट गर्ल, आई अप्रिशिएट यू कि आपने इतनी बड़ी करेज दिखाया, क्योंकि कभी कभी ऐसे मामलों में दखल देने के लिए, हैरेसमेंट को रोकने के लिए, वायलेंस में इंटरवेन करने के लिए काफी करेज और कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसी करेज और कॉन्फिडेंस को लाने के लिए कभी कभी हमारे मन में भी डर होता है कि कुछ हो ना जाए, या कोई मतलब मैं ही टारगेट ना बना ली जाऊं। काफी सारे हमारे कॉमन रीजंस होते हैं उसके भी, ठीक है। तो वो कॉमन रीजंस क्या होते हैं उसको हम जानेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बाय स्टैंडर्ड इंटरवेंशन आर प्रूवन मेथोडोलॉजी। तो हम जो है क्या करेंगे कि ये जो मेथोडोलॉजी है इसको भी अभी हम 5D के जरिए जानेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो इंटरवेंशन करने से खुद को रोकते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी और चीज की, जैसे कि अभी हम रिसेंटली बात करें कोविड के दौरान, किस तरह लोगों ने एक दूसरे की कितनी हेल्प करी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेके, प्लाज्मा, ब्लड, इवन की राशन तक बांटे लोगों ने, ठीक है। काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी हेल्प करी, जैसे जिससे हो सका उसने अपने अकॉर्डिंग दूसरे की मदद करने की कोशिश करी। यहाँ तक अगर छोटा सा भी एग्जांपल ले, मेरे दोस्त का होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं अपनी कॉपी उसको शेयर करूंगी उसके साथ, ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकल सके। लेकिन जब बात आती है हैरेसमेंट जैसी चीजों की, वायलेंस जैसी चीजों की, लोग क्यों खुद को फ्रीज कर लेते हैं? वो क्या रीजंस हो सकते हैं ऐसे कि वो कॉन्शियसली साइलेंट रहते हैं, कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम 5D को थोड़ा मोटा मोटा नामों के जरिए देख लेते हैं कि वो 5D है क्या। 5D है डिस्ट्रैक्ट, डेलीगेट, डॉक्यूमेंट, डिले एंड डायरेक्ट। So these are the 5D: distract, delegate, document, delay and direct, ठीक है। अब हम बात करते हैं वो जो कॉमन रीजंस थे कि पीपल डोंट एक्ट।
कभी कभी हम सोचते हैं कि nobody is doing anything, why I do, ठीक है, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं. This kind of thinking is called the bystander effect and it allows a whole crowd to wait. कभी कभी हम ये सोचते हैं इतनी भीड़ है यहाँ पर, जब कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, और अगर कोई करेगा, मतलब कोई पहल करे तो मैं बाद में बोल दूंगी या बोल दूंगा, लेकिन अभी मुझे पहला इंसान नहीं बनना जो इसमें दखल देगा. कभी ये थिंकिंग भी हम अपने मन में रखते हैं. लेकिन here is the question for you, what concerns do you have about the intervening? Multiple choice है. आपको ऐसा लग रहा है कि I am scared I will end being targeted, या फिर I am afraid I will make things worse, या no one else is doing anything, या फिर I don't have enough context for the situation, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा था तो मैं क्या एक्शन लूं, या फिर I don't know what to do, it seems harmless, ये मुझे खतरनाक सा लग रहा था, थोड़ा मेरे लिए कहीं हानिकारक ना हो जाए ये. तो what is the concern from your side? I am waiting your answers in the chat box. Please share. Okay. Shivani ma'am, don't have enough context. First and second. I don't have enough context. Okay. ठीक है. तो ये जो 6 कंसर्न्स अभी हमने रीड आउट किए हैं और ये हमारे मन में थोड़ा डर रहता है हैरेसमेंट या वायलेंस जैसी चीजों में इंटरवेन करने के लिए, तो इनको हम कैसे fill out कर सकते हैं. So these are the some points which helpful for us. So I will read for you कि I am scared it will turn on me. अगर हमें ऐसा फील होता है कि ये कहीं मेरे ऊपर ही ना आ जाए तो ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड पिक अ लेस. हम कोई एक छोटा सा वहां पे एक छोटा सा कोई एक्शन लेने की कोशिश कर सकते हैं. लाइक हम किसी अगर हमारे अंदर इतना करने आ रहा है, बराबर में कोई अंकल हैं या फिर कोई और हमारा लग रहा है हमें कि कोई हेल्प कर सकता है, तो हम उनसे भी बोल सकते हैं ना. ठीक है, तो ये एक लेस डायरेक्शन हो जाएगा, लेस एक्शन हो जाएगा. लेकिन सबसे पहले हम अपने आप पर भरोसा रखेंगे, तब हम किसी चीज को करेंगे. बिकॉज गट्स इज इम्पोर्टेंट कि आपकी मन की आवाज क्या कहती है उस वक्त. अगर आप फील कर रहे हैं कि इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, आपको लगे कि ये मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं इसमें, तो इवन इफ यू हैव नेवर बीन अ टारगेटेड, अ फ्रेंड और लव्ड वन probably has been harassment hurts everyone. अगर आपने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि आपके लव्ड वन कोई और किसी ने इसको फेस किया और आपसे कभी शेयर भी ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन हैरेसमेंट दुखदाई होता है सभी के लिए, दर्द करता है, हर्ट होता है इस चीज से. ठीक है, बिकॉज जो वर्बली कम्युनिकेशन होती है, कभी कभी हम सोचते हैं कि बस ज्यादा छुआ तो नहीं या फिर पकड़ के तो नहीं ले गया ना, हाथ थोड़ी पकड़ा था. तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो मतलब अगर उसने कमेंट भी किया तो वो मुझे पता है कैसी फीलिंग आई थी उस वक्त मुझे, वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती इन वर्ड्स. तो हम ये ना सोचें कि वर्बल कम्युनिकेशन ही फिजिकल वायलेंस ही एक प्रॉपर जो है क्राइम है या प्रॉपर वो है गुनाह है करने का. ठीक है, जो वर्बली चीजें होती हैं वो भी उतना ही दुख देती हैं जितना फिजिकली हम हैरेस होते हैं. या फिर अगर आप फील करते हैं आई डोंट फुली अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, तो आप कोशिश करें जो आसपास के लोग खड़े हुए हैं उनसे पूछें कि यहाँ क्या हो रहा है, प्लीज आप हेल्प करिए इस तरह से. या फिर आई एम अफ्रेड आई विल मेक थिंग वर्स, आपको लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो जाए अगर मैंने कोई एक्शन लिया, तो यू कैन पिक अ लेस डायरेक्ट एक्शन लाइक आस्किंग समवन टू हेल्प. जैसे अभी मैंने बताया, आप किसी और की भी मदद ले सकते हैं वहां पे. या फिर इट सीम्स हार्मलेस, अगर आपको इट्स हार्मलेस राइट, यानी कि आपको लग रहा है कि ये बहुत हार्मलेस सा है, तो verbal harassment makes targets feel uncomfortable and threatened and can escalate to physical violence also. जैसे अभी मैंने बताया कि हर बार physical violence तो है ही हर्ट, लेकिन करता ही हर्ट है, लेकिन वर्बली जो चीजें होती है ना वो भी उतनी ज्यादा हर्ट करती है. तो हम इंतजार ना करें कि जब बात फिजिकल वायलेंस पे है तब हम उसमें कोई दखल दे जाकर. जो वर्बली चीज हो रही है उनको भी रोकना जरूरी हो जाता है. ठीक है, आई कांट मेक अ डिफरेंस, आपके अकेले के करने से कुछ नहीं होगा. हम कभी कभी ऐसा भी मन में कंसर्न रखते हैं, मैंने एक की मदद कर दी तो क्या पूरी दुनिया बदल जाएगी, बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं. तो हम क्या करें उस वक्त, आर एक्शन कैन डिस्करेज द हैरेसर, सपोर्ट द टारगेट एंड हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर हैरेसमेंट. शायद हो सकता है किसी ने लड़की को हैरेस किया या किसी को हैरेस किया, किसी ने किसी को हैरेस किया, तो अब अगर हमने वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी जो हिम्मत है, जो करेज है हैरेसर की, वो बढ़ेगी.
वो कल शायद 2 को वो और परेशान करे, किसी को और 2-3 लोगों को तो किसी ने कुछ नहीं किया, आज क्या कर लेगा कोई कुछ। अगर आपने उसी वक्त उसे रोक दिया, आज ही रोका, कोई एक्शन लिया, तो हो सकता है उसकी हिम्मत टूटे कि आज तो सिर्फ मुंह से मना कर दिया, डांट डपट के छोड़ दिया, कल को ऐसा ना कोई रिपोर्ट कर दे या पब्लिक पिटाई करने लग जाए, तो उसकी जो हिम्मत है वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होगी, और जो जिसके साथ हैरेसमेंट हुआ, जो टारगेट था, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, लगेगा कि हाँ मेरे लिए कोई खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो वी कैन सी द जो कंसर्न्स हमारे मन में थे शायद थोड़े से रिमूव हुए हों इन चीजों को देखकर। अब जो है हम बात करने जा रहे हैं कि अभी जो हमने 5Ds पढ़े थे उसको हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पहला डी था वो है डिस्ट्रैक्ट का, तो मैं उसका वीडियो प्ले कर देती हूँ, हम ठीक से देखेंगे। Okay, so as you saw the video clip about the distraction, so जो distraction का वीडियो है, क्या वीडियो में आपने देखा क्या हो रहा था? कोई हेल्प हो रही थी, हैरेसमेंट हो रही थी, क्या हो रहा था? आपको कैसा लग रहा था वीडियो देखने के बाद? आई एम वेटिंग फॉर चैट बॉक्स आंसर्स इन चैट, नॉट दैट आई सो वन। अच्छा, तो मैं वीडियो दोबारा से प्ले कर रहा हूँ। I think he said that आई थिंक आपको कोई नेटवर्क इशू हो सकता है आयुष, आप प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी सबको दिख रहा था, आई थॉट प्रॉपर। If you write something in the chat box, then I got my answer that now you understand the distract video. The early woman intervened, exactly. Ayushi, okay, yes, he was trying to touch her. I think he was trying to touch, exactly, yes, okay, now I got that you understood the video. So आपको अगर लाइक अब हम जो 5D मेथोडोलॉजी सीखने जा रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो हमने देखा और पहली डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है सिचुएशन को, ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप हैरेसमेंट के दौरान, ये तरीका अब हम दूसरे वाले पार्ट में अपने ट्रेनिंग के, कि अब हम ये जान रहे हैं जब किसी और के साथ हम हैरेसमेंट होते हुए देखते हैं तो हम 5D को कैसे इम्प्लीमेंट करके हैरेसमेंट में इंटरवेन करें, जिसका पहला पार्ट डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है। सॉरी फॉर दैट। ओके, तो जिसका पहला पार्ट डिस्ट्रैक्शन शायद हो सके उसमें, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, या फिर आप थोड़ा और क्रिएटिव हो सकते हैं इसमें, लाइक स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद द टारगेट और फाइंड अनदर वे टू ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम देम। फाइनली हमें इसमें यही करना है कि हमें सिचुएशन को डिस्ट्रैक्ट करना है। वो हम कैसे भी कर सकते हैं, लाइक हम जैसे उस ओल्ड लेडी ने बुक गिराकर डिस्ट्रैक्ट किया और बीच में आकर उसने हिम्मत की। आपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी देखे होंगे उस गर्ल के, कि पहले कितना उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी, लेकिन जैसे ही उस लेडी महिला जो आई उन्होंने बीच में आकर उस पोल को पकड़ लिया तो उसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई, उसको लगा कि हाँ मेरे लिए कोई खड़ा समझ रहा है कि मेरे साथ गलत चीज हो रही थी यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि कुछ कॉइन भी गिरा सकते हैं, पानी की बोतल गिरा सकते हैं, या टाइम पूछ सकते हैं। फाइनली हमें करना ये है कि हमें डिस्ट्रैक्ट करना है, वो खुद कैसे भी तरीके से कर सकते हैं हम, ठीक है, जोर से हंस सकते हैं, किसी को आवाज दे सकते हैं तेज आवाज में, ठीक है। नाउ वी विल सी द सेकेंड वीडियो, इस डेलीगेट। There's a man touching a woman at the back of the bus, and I don't know what to do. Can you help? Tanupriya, you want to say something? I think she's not able to unmute herself. Hi Uzma, I just wanted to share that there is written a comment in the chat box, which is written by Ayush Singh, and he is saying that the video was absolutely clear, but I didn't see any harassment. So I think you need to clear the whole video
Like he is not able to identify the harassment. So you need to clear that. Yes. Okay, okay, sure. Thank you for concern with this. We'll play again this video like distraction. Ayushi, please see the video. Okay. So Ayushi, is that clear now? Uzma, just a small thing. If unless nobody is getting it, I think we can avoid this kind of because there's also a time concern. So so maybe most people are getting it, I think, and if somebody has a very specific query, we can take it at the end of the session. Sure. Right. Okay. Right. So as we saw the video delegate, so delegate में भी कुछ चीजें ऐसी हैं. ये second video था 5D में से. पहला था distract, second one is delegate. तो find someone in a position of authority. Like अगर हमें feel हो रहा है कि हम distraction नहीं कर पा रहे situation में, तो हम किसी और की help ले सकते हैं delegate वाला तरीका अपनाकर, और हम कोशिश करेंगे कि कोई authority में person हो. Like अगर हम स्कूल में हैं तो हम किसी जैसे हम कॉलेज में हैं तो हम कॉलेज में जैसे यहाँ पे वुमेन WCD होता है, WDC होता है, ठीक है. या फिर हम जा सकते हैं अगर स्कूल में है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल या फिर गार्ड से भी बोल सकते हैं, टीचर को भी बता सकते हैं. जैसे अपनी स्क्रीन पर फ्लाइट अटेंडेंट को बोल सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, टीचर और स्टोर मैनेजर एज वेल एज. ठीक है, तो हम कुछ ऐसे लोगों को चूज करें जो अथॉरिटी में है और जो आपकी हेल्प कर सकें. ठीक है, तो अब नाउ वी सी डॉक्यूमेंट. Okay, so documenting is also a good way for intervene. So like if you decide to document the situation of harassment, तो आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे यहाँ पर. और सबसे पहले इसमें से ये होगी कि आप वहाँ पर जो लॉ है, लोकल लॉज होते हैं ना, क्योंकि कहीं कहीं पे जैसे म्यूजियम या मेट्रो वगैरह में मना होता है वीडियोग्राफी या फिर फोटो वगैरह लेने को, तो आप सबसे पहले उन लॉज का ध्यान रखेंगे. उसके बाद आपने जब वीडियो बना ली तो आपको इसे सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना है. आप उस जो टारगेट था उससे जाकर ये बोलेंगे कि मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, मैं माफी चाहूंगा या चाहूंगी कि उस नहीं कर पाई, शायद मेरे अंदर इतना करेज नहीं था, लेकिन मैंने प्रूफ के लिए, अगर आप पुलिस को देना चाहते हो या इसको मतलब एक्शन लेना है कोई, तो ये प्रूफ रहेगा आपके पास कि आपके साथ हैरेसमेंट हुई थी इस तरह से, तो आप वीडियो बना सकते हैं. और उसको वीडियो देने के बाद आपको अपने फोन में से डिलीट कर देना है वीडियो. और उसके बाद एक बात का ये ध्यान रखना है कि जो लैंडमार्क्स होते हैं ना, उसका ज्यादा ध्यान रखना है. जैसे अभी इसमें पता चल रहा था कि हाँ वीडियो जो बन रहा है वो किसी मेट्रो में या बस में बन रहा है, ठीक है, तो हम जैसे लैंडमार्क कुछ भी हो सकता है, मेट्रो का पोल हो सकता है, कोई फेमस चौराहा या कोई बोर्ड हो सकता है, कोई फेमस शॉप हो सकती है, कोई मेडिकल स्टोर, कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज. अगर इन केस आपको कोई ऐसा लैंडमार्क नहीं दिख रहा वहां पर और आप डॉक्यूमेंट करना चाह रहे सिचुएशन, तो आप क्या करेंगे कि वीडियो में हल्के से बोल सकते हैं कि आज ये दिन है, डेट ये है और टाइम ये हो रहा है, और मैंने यहाँ पर इसको मतलब हैरेसमेंट होते हुए देखा, इसलिए मैंने प्रूफ के लिए ये वीडियो बना रही हूँ या बना रहा हूँ, और ताकि ये सबूत बन सके और हेल्प की जा सके हैरेसमेंट के लिए. तो दैट इज ऑल्सो इनफ. Let's move forward for another D, is delay. Are you okay? Want me to hang around for a bit so he doesn't come back? डिले बेसिकली ये शब्द से ही पता चल रहा है कि हम डिले कर रहे हैं. लाइक हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे सिचुएशन, हम डिस्ट्रैक्शन भी नहीं कर पा रहे, हम डेलीगेट किसी की हेल्प भी नहीं ले पा रहे. तो हम क्या कर सकते हैं उस वक्त जब हैरेसमेंट खत्म हो जाए, वो चला जाए हैरेसर जो है,
तो हम उसको जाके कंफर्टेबल कराएं, उसको एक अच्छा जोन क्रिएट करके दें ताकि वो थोड़ा सा उस ट्रॉमा से निकल सके, क्योंकि ट्रॉमेटिक जब चीज बन जाती है तो वो मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगती है, और जब मेंटली इफेक्ट होगा तो हमारा पूरा फिजिकल जो हेल्थ है वो भी उससे हार्म पहुंचेगा उसको। ठीक है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो से कि कैन आई सिट विद यू, थोड़ी देर उनके पास बैठिए, उनसे थोड़ा बात करने की कोशिश करिए, ट्राई टू उनका जो अटेंशन जो कंसर्न उधर जा रहा था ना हैरेसमेंट की तरफ, उसको थोड़ा विड्रॉ करने की कोशिश करें, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। आप उनसे कह सकते हैं कि मैं थोड़ा दूर तक चल दूं आपके साथ, या फिर मेट्रो तक पहुंचा दूं, या कोई रिक्शा करा दूं, या ऑटो करा दूं, कैब बुला दूं, इस तरह की चीजें, ताकि वो उसको थोड़ा सेफ फील हो कि मेरे में कोई सोच रहा है या कुछ कंफर्टेबल कराने की कोशिश कर रहा है। इन केस कि अगर हैरेसमेंट लड़की के साथ हो रहा है और आप लड़के हो और आपको डिले का इस्तेमाल करना है, तो आप किसी फीमेल कैंडिडेट को अपने साथ लेकर जाएं, बिकॉज द रीजन इज दैट कि अगर मान लीजिए वो उसके साथ हैरेसमेंट अभी हुआ और आप सोच रहे हैं कि मैं डिले का यूज करके थोड़ा कंफर्टेबल कराऊं उन्हें लगे, लेकिन ये शायद अभी उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो आपके बारे में ये सोचें, उनको ये ना लगने लगे कि अभी मेरे साथ उसने की या मुझे हैरेस किया, कहीं ये भी ना आ जाए फिर से। ठीक है, तो सिचुएशन उस वक्त ना ऐसी हो जाती है मेंटेलिटी हमारी कि मतलब उसको एक्सप्रेस भी नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा एंजाइटी फील होने लगती है, डिप्रेशन होने लगता है, और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि किसी फीमेल को साथ में लेके जाएं। एंड डायरेक्ट इज लास्ट वन। Hey, I like your jacket. Where'd you get it? Could you leave me alone? You're being totally inappropriated right now. ओके, तो ये था डायरेक्ट टी जो कि लास्ट है 5D में से। तो डायरेक्ट का जो इस्तेमाल है वो आपने देखा वीडियो में किस तरह से किया गया, कि आप हैरेसमेंट के दौरान ही डायरेक्टली जाके हैरेसर को बोलते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू यूज आपको का इस्तेमाल करना है तो आप जो हैरेसमेंट कर रहा है उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट एक्शन में चीजें बहुत ज्यादा वर्स होने लगती हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 शब्दों में अपनी बात खत्म करें उनसे कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है, इसको रोक दीजिए इस तरह से। और आप कोशिश करें जिसके साथ हैरेसमेंट हुई उसको कंफर्टेबल कराने की, उनसे पूछें आर यू ओके, शुड आई गेट हेल्प, या फिर शुड वी गेट आउट ऑफ हियर, इस तरह से पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है, नाउ वी लर्न ऑल द डीज। So this is the question again here for you, is that what is your super power, कि आपकी सुपर पावर कौन सी होगी इन केस और इन फ्यूचर आप आगे जाके देखें कि हैरेसमेंट हो रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट का यूज करूंगी या मैं डिले करूंगा या डेलीगेट करूंगा, आप क्या करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। Direct, document, direct, according to the situation. Exactly, we can also do according to the situation. Okay, distract, distract, distract and delay, distract. Very good. सभी participants अच्छे से participate कर रहे हैं, like interactive हो रहा है session. Okay, so be a bystander, move into a action. तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मान लीजिए अब हमने 5D अच्छे से लर्न कर लिया, समझ लिया कि कैसे कैसे डीज होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अब आप बस आपने देखा हैरेसमेंट हो रही है आपको करना है, नो। सबसे पहले आप इन 3 पॉइंट्स को देखें कि नोटिस द सिनेरियो। सबसे पहले आप अपनी सिचुएशन को देखें और अपनी सेफ्टी को एक्सेस करेंगे एक डिस्टेंस बनाकर। हैरेसमेंट वाली जगह से आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और अपनी सेफ्टी एक्सेस करेंगे। देन द सिनेरियो नोटिस, आप सिनेरियो को नोटिस करें कि सच में हैरेसमेंट हो रहा है या नहीं। ऐसा ना हो कि वहां पर मतलब नाराजगी चल रही है, दोस्तों में थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई हो गई तो आपको लग रहा हो कि हाँ हैरेसमेंट हो रही है। ठीक है, पहले आप एनालाइज करेंगे सिनेरियो को। सेकेंड वन इज नोटिस व्हाट कीप यू फ्रॉम एक्टिंग व्हेन यू सी हैरेसमेंट। फिर आप ये देखें कि आपको कौन सी चीज रोक रही है हैरेसमेंट करने से, कौन सा आपका कंसर्न फिर से आ रहा है कि कहीं मेरे साथ मतलब मुझे दोबारा टारगेट ना बना लिया जाए, या कुछ और कंसर्न आपको लग रहा है। तो आप डिसाइड करें फिर कि कौन सा डी आपके लिए वर्क कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद when street harassment happens to you, how do you take care of yourself in an empowering way। अगर harassment आपके साथ होता है
तो आप जो है अपना ध्यान कैसे रखते हैं, आप खुद को एम्पावर कैसे करते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन। लेकिन इसका प्रॉपर एक मैं अभी दोबारा पूछूंगी इसको, तब तक आप सोच के रखें कि आप अपने आप को कैसे एम्पावर करेंगे अगर आपके साथ हैरेसमेंट होती है तो, ठीक है। और दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट स्ट्रीट हैरेसमेंट इज नेवर योर फॉल्ट। जो स्ट्रीट हैरेसमेंट है उसमें आपकी कभी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि हम इस गिल्ट में जी रहे होते हैं कि मैंने कुछ गलत किया होगा, शायद मेरी चाल ऐसी होगी, या मतलब मैंने दुपट्टा इस तरह ले रखा होगा या मेकअप कर रखा होगा ज्यादा, तो हम इस गिल्ट में ना जिए, बिकॉज ये उसकी मेंटेलिटी है जो बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए उसने कमेंट किया या इसलिए उसने मुझे हैरेस किया, दिस इज नॉट माई फॉल्ट। ओके, सो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव द परफेक्ट रिस्पॉन्स, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट हरेस यू। मतलब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको हैरेस ना करें, ये आपका, इसमें कोई परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है। मान लीजिए मैं कहूँ कि आपको हमेशा डिस्ट्रैक्शन ही करना है, तो क्या पता सिचुएशन ऐसी ना हो कि आप डिस्ट्रैक्शन करें उसमें, ठीक है। तो आप इसका कोई परफेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होता, और इसको रिस्पॉन्स करने के लिए हम एट द मोमेंट भी कोई एक्शन ले सकते हैं, और 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 2 महीने बाद भी एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम थर्ड पार्ट में आ गए हैं कि 3 स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू हैरेसमेंट। अगर हैरेसमेंट हमारे साथ होती है, अब तक हमने जाना कि हैरेसमेंट किसी सामने वाले के साथ हो रही है तो हम कौन से डीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हमारे साथ होती है हैरेसमेंट तब हम कैसे कैसे एक्शन ले सकते हैं। तो हियर इज द 3 स्ट्रेटजीज। फर्स्ट, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, रिक्लेम योर स्पेस एंड प्रैक्टिस रेजिलियंस। सो दिस वन इज मैंडेटरी, ये करना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज था कि तो लिसन टू व्हाट योर गट्स इज टेलिंग यू, देयर इज नो राइट और परफेक्ट रिस्पॉन्स टू हैरेसमेंट। जैसे अभी मैंने बताया कि इसका कोई परफेक्ट और राइट रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता, ये डिपेंड ऑन द सिचुएशन भी है, और अर्लियर और लेटर भी होता है। हाउएवर स्टडीज शो दैट हैविंग सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ईदर इन द मोमेंट और लेटर कैन रिड्यूस द ट्रॉमा एसोसिएट विद द हैरेसमेंट। क्योंकि कभी कभी फील होता है मैंने उसको उस दिन बोल ही दिया होता या कोई एक्शन ले लिया होता तो शायद आज वो फिर से ऐसी हरकत ना करता। तो ये जो ट्रॉमा हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है ना, अगर हम एक्शन बाद में भी लेते हैं ना, तो दैट्स ऑल्सो परफेक्टली फाइन, ये उस ट्रॉमा को कम करता है, ठीक है। और ये आप अपने लिए कर सकते हैं। अगर रिक्लेम योर स्पेस, डिसाइड इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड एंड हाउ। अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो कैसे। टेलिंग द पर्सन हरासिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट देम टू डू एंड व्हाई। तो आप उनको बताएं कि आप जो है हैरेसमेंट जो हो रही थी, टेलिंग द पर्सन हरासिंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, कि आप वो क्या चाह रहे हैं आपसे, आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। या फिर engaging bystanders by telling them, आप जो बायस्टैंडर्स खड़े हैं, आसपास के लोग खड़े हैं, उनसे हेल्प मांगे, उनको इनकरेज करें कि प्लीज मेरी हेल्प करिए, मेरे साथ गलत हो रहा है, ये हैरेसमेंट हो रही है। या फिर आप डॉक्यूमेंट द सिचुएशन, आप सिचुएशन को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं और ऐसा प्रिटेंड करें कि आप अपने फोन में कुछ और कर रहे हैं लेकिन आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट कर रहे हैं सिचुएशन को। इसके बाद आता है प्रैक्टिस रेजिलियंस। सो देयर इज स्ट्रेट in recognizing that street harassment hurts, don't show it down and pretend it didn't happen। तो हम इसको इग्नोर ना करें और ये भी ना समझे कि कुछ हुआ ही ना हो जैसे, बिकॉज हैरेसमेंट बहुत बड़ी चीज होती है, इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि कुछ बड़ा नहीं हुआ अभी, ठीक है। फिर अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो कहा जाता है कि पहले बताया होता तो कुछ एक्शन लिया जाता, ठीक है। तो बजाय ये सब करने के हम इंस्टेड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, हम खुद अपनी सुरक्षा करें और अपना ध्यान रखें, बजाय ये प्रिटेंड करने के जैसे कुछ हुआ ना हो। या फिर आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं कि आपके साथ कैसी सिचुएशन हुई थी, या आप होला बैक जो ऐप है वहां पर भी जाके अपनी एक्सपीरियंस को, अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। हियर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू कि व्हाट डज रेजिलियंस लुक लाइक फॉर यू। जो मैंने अभी 2-3 स्लाइड पहले सवाल करा था, वो सवाल यही था कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं। कि कभी बहुत से लोगों को मन होता है कि वो डायरी लिखकर उन्हें थोड़ा रिलीफ महसूस होता है, ठीक है। बहुत से लोगों की म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तब उनका ट्रॉमा रिड्यूस होता है। तो व्हाट इज योर रेजिलियंस लुक लाइक फॉर यू। मल्टीपल चॉइस, taking a moment alone to breathe or sharing your story online
आप अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं होला बैक ऐप पर, या फिर लिसनिंग टू म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, रिमाइंडिंग योरसेल्फ आई एम स्ट्रांग, या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं और कुछ और करते हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं इन द चैट बॉक्स। One and 5 taking a friend family member, very good, nice. Okay, great. So get ready to practice. Now we are in the fourth part of our session. अब हम practice करेंगे. I will play another video. This is the actual video footage of the New York City and ये एक मेट्रो का वीडियो है, ठीक है? तो आप वीडियो के दौरान अपना ध्यान रखेंगे थोड़ा, और इसमें थोड़ा सा फिजिकल वायलेंस आया है, तो हमारा मोटिव फिजिकल वायलेंस करना नहीं है, सॉरी। या तो हमारा मोटिव फिजिकल वायलेंस को सपोर्ट करना नहीं है, वीडियो सिर्फ जो है वो सीखने के लिए है, लर्निंग के प्रोसेस से दिखाया जा रहा है। ओके, नाउ आई एम प्लेइंग द वीडियो। Don't fucking follow me, stupid dick. No, you. Don't follow me, stupid son of a bitch. Do not follow me. No. You're not gonna do one. Not follow me. Not follow me. No. You need to stop following. So get on another car. When the train stops, do not follow me anymore. Do not follow me. Okay, she's told to follow me. We got you on camera. Don't follow. We got you. When we stop again, get off. Okay, do not follow me. Please get off. Please. Get off. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ वीडियो में कि जो महिला थी, आपको लग रहा होगा कि शायद फिजिकल वायलेंस एकदम से हो गया और महिला ने किया ये, जो सामने आदमी था, लेकिन बात ये थी कि आपने सुना भी होगा वीडियो में, महिला बार बार बोल रही थी डू नॉट फॉलो मी, डू नॉट फॉलो मी। तो इसका मतलब सिनेरियो समझ आता है कि काफी टाइम से वो जो व्यक्ति है महिला को फॉलो करता आ रहा था और महिला ने डायरेक्ट का यूज करते हुए फिजिकल वायलेंस किया, ठीक है? लेकिन फिजिकल वायलेंस सॉल्यूशन नहीं हो सकता हर चीज का, ठीक है? तो अब जो सवाल है, तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द 5 Ds डू यू सी इन एक्शन? मल्टीपल चॉइस है। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन से डी का इस्तेमाल हुआ था वीडियो के अंदर। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज। डायरेक्ट, डिस्ट्रैक्ट एंड डॉक्यूमेंट। वेरी गुड सौम्य। जरा डायरेक्ट का, डायरेक्ट बाय द पर्सन ईटिंग, डायरेक्ट एंड डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 3 Ds का इस्तेमाल किया गया है। फर्स्ट है डिस्ट्रैक्ट, डॉक्यूमेंट एंड डायरेक्ट। डिस्ट्रैक्ट आपने देखा होगा चिप्स खाते हुए आया था, someone is mentioned also in the chat box section कि कोई चिप्स खाते खाते आया, बीच में खड़ा हुआ और फिजिकल वायलेंस रुक गया था, तो दिस वाज द डिस्ट्रैक्शन। ओके, एंड डॉक्यूमेंट इज दैट कि किसी ने इस वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड किया, इसीलिए आज हम इसको देख पा रहे हैं। और डायरेक्ट है कि महिला ने डायरेक्ट एक्शन लिया था वहां पर। ओके, तो अब मैं आपको कुछ सिनेरियोज दूंगी, दिस इज द लास्ट पार्ट। मैं कुछ सिनेरियो, 2 सिनेरियो दूंगी। पहला सिनेरियो ये होगा, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। You are at a restaurant having a quiet drink food with some friends. A woman is sitting alone at the restaurant and another customer started to give her a hard time. ठीक है? He reaches over and touches her and occasionally he talks about her body.
The woman looks very uncomfortable and move further away, but the other customer continues with his comments. वो कंटिन्यू रखता है अपने कमेंट्स करना उस महिला के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये सिचुएशन एक क्रिएट करी गई है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब आप ये सोचें कि उस महिला की जगह, उस लेडी की जगह आप हो रेस्टोरेंट में और आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आप जो है अब वो क्या करोगे इनमें से कि मूव एंड सिट डाउन नेक्स्ट टू अ लार्ज ग्रुप, आप वहां से उठ के किसी दूसरे ग्रुप में बैठ जाओगे, या फिर टेल हिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई नीड सम स्पेस, आप सीधे सीधे उनको बोल देते हो, या फिर दिस स्ट्रिक्टली टेक हिज फोटो एंड ईमेल इट टू द ओनर, या फिर आप ओनर को मैसेज करोगे या वेटर को बुलाओगे, ठीक है। कुछ और भी हो सकता है इसके अलावा। शेयर एंड मैप योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को होला बैक पर बताओगे, और समथिंग एल्स राइट डाउन इन द चैट बॉक्स प्लीज। डॉक्यूमेंट एंड डेलीगेट, ओके। लाया जी जो है डॉक्यूमेंट एंड डेलीगेट का इस्तेमाल करेंगी, फाइन। सोनी सोनी जी ने बोला है कि 2 और 4, ओके। टेल हिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई नीड सम स्पेस, ग्रेट। ये भी किया जा सकता है। हम अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं होला बैक पर, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है जब हम किसी को बता देते हैं नाउ आई एम कंफर्टेबल, आई एम रिलैक्स नाउ, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज करने से जिससे हमारा ट्रॉमा रिड्यूस हो, प्लीज गो अहेड। और इस गिल्ट में ना रहें कि मैं जवाब दे देती तो तभी ठीक रहता, नहीं, आप बाद में भी उसको एक्शन में ले सकते हैं, ओके। तो हेयर इज अनदर क्वेश्चन। आप जो है वो लेडी नहीं है, ठीक है, रेस्टोरेंट में जो ये सिचुएशन चल रही थी वो आप होते हुए देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी के साथ ऐसा किया, तो उस वक्त आप कौन से डी का इस्तेमाल करोगे? डिस्ट्रैक्ट करोगे, डेलीगेट, डिले, क्या करोगे आप? सिचुएशन में दे चुकी हूँ 3, 2, ठीक है, डायरेक्ट का, डिस्ट्रैक्ट का, ओके। साक्षी ने लिखा है 1, 3 एंड 4, ओके। डिले डायरेक्ट भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट, ओके, वेरी नाइस। अनदर सिनेरियो, प्लीज केयरफुली लिसन एवरीबॉडी। सो यू आर ऑन अ क्राउडेड बस, एक बहुत भीड़ भरी बस है और आप उसमें हो, सॉरी आप नहीं हो, सिचुएशन में बता रही हूँ अभी, कि अ मैन हैज सेट डाउन अपोजिट अ वुमन एंड ही कीप्स आस्किंग हर क्वेश्चंस, ठीक है। वेयर इज शी गोइंग, वेयर डिड शी गेट द ड्रेस, कैन ही हैव her phone number? The woman is responding in very few words and refuses to give him her phone number. वो बिल्कुल साफ मना कर दे, बहुत कम शब्दों में बताती है कि मैं तुम्हें फोन नंबर नहीं दे सकती हूँ या नहीं दूंगी। या फिर और क्या होता है आगे कि he continues to ask her for her phone number, लेकिन वो फिर भी उससे काफी बार उसका फोन नंबर मांग रहा होता है। She looks uncomfortable and is looking around the train trying to make eye contact with strangers. जो स्ट्रेंजर्स आसपास बैठे हैं ना, वो महिला उनसे नजर मिलाने की कोशिश कर रही है, आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है कि वो बता सके कि मेरे साथ गलत हो रहा है, बार बार ये मुझे इस तरह से हैरेस कर रहा है, ठीक है। तो अब आप वो महिला हैं जो कि क्राउडेड हैं, जिसके साथ ये हो रहा है, तो आप क्या करोगे? गेट ऑफ द ट्रेन एंड कॉल अ फ्रेंड टू टेल देम व्हाट हैपेंड, कि आप बस से निकल जाओगे और किसी फ्रेंड को कॉल करके बताओगे कि क्या हुआ, या फिर आस्क अनदर पैसेंजर इफ ही विल स्विच सीट विद यू, या फिर प्रिटेंड दैट यू आर वर्किंग ऑन योर फोन व्हाइल यू डॉक्यूमेंटिंग द सिचुएशन। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कुछ और कर रहे हो, लेकिन आप कर क्या रहे हो? सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रहे हो। Once it's over, breathe deeply and remind yourself that I didn't deserve it, ठीक है। या फिर आप जो है गहरी लंबी सांस लेकर खुद को याद दिलाते हो कि आप इसके लायक नहीं हो, you don't deserve it. Okay, answers is coming in chat box. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Okay, Vanshika, Mansi, Ayushi, shouting so that everyone around can know. Exactly, we can also do it. Switch seat, call the conductor or ask someone. चल रही थी वो सिचुएशन आप होते हुए देख रहे हो क्राउडेड बस में, ठीक है। अब आप वो महिला नहीं हो, आप देख रहे हो, तो आप कौन से डी का इस्तेमाल करोगे?
सिचुएशन में इंटरवेन करने के लिए? I think someone raised hand. We will discuss after the session. Okay. Exactly. We can also do Anantha. Distract, distract, distract. Okay. Very nice. Up here is our last question. Is that key? If you saw harassment happening, do you think there is at least one thing you could do to help? किसी की मदद करने के लिए कोई आप एक ऐसी जो चीज है वो कर सकते हैं जब आप हैरेसमेंट देखते हैं कहीं पर? Yes or no? Yes, yes. Prince Ruhi. Okay. Okay. So I think yes जो है वो काफी कम आए हैं. I think people is thinking, oh, I didn't see, sorry for that. Yes, yes, yes. Okay, very good, nice. So guys, thanks to very much for everyone for taking your time. And now I am sharing the link, the evaluation form link. I think this is the link that they need to fill for their certificates also, right? Yes, yes. So everybody fill in the details, etc. correctly. And maybe we can give them 2 minutes to just fill this. उस्मा हम उनको 2 मिनट दे दें कि ये सब. Yeah. Exactly, ma'am. After the filling this link, the form, you will get your certificates in 2 minutes maximum. Here is a one thing that what is your first reflection after the training session? Who filled the form? They can write down in the chat box also. Okay, here is something. Vishwas. Thank you, Vishwas, for this.
I think maybe we can just give couple more minutes and that is the last thing. Uzma, आपको और इसके बाद कुछ बोलना है? Okay, so बस मैं यही कहना चाहूँगी, after the session here is something observation like the respective teachers if say any if they have any reflection about the session, so please share with me. I would just like to say it was very practical and काफ़ी useful लगा. आपने जो scenarios भी दिखाया sorry, वो I think although न्यूयॉर्क के scenes थे ज़्यादातर या उस तरह से, but I think you know all of us who travel by public transport, हम बिल्कुल metro जैसा ही लगा, तो इतना अलग नहीं लगा. And I think you gave us you basically equipped us कि ऐसा हो तो हम क्या कर सकते हैं. So I think because all of us know कि होता है, but most of us I think you know even somebody you know who's at my age you know you hesitate क्योंकि हमें लगता है कि हमें पता नहीं exactly क्या करना चाहिए इस मौके पे. So I think that is the learning even for someone you know who's much more sort of unfortunately experienced in terms of you know all kinds of street harassment. And but at the same time, I think youngsters nowadays are much more vocal when it comes to something like this. So I'm sure वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे से इस पूरा इससे और भी ज़्यादा I think चीज़ें ले पाए होंगे, you know, and I'm sure they will be able to practice you know in their own lives you know what they need to be doing to stop this kind of street harassment. Yes, exactly. Any student, if you want to write your response to this training workshop, you can do so in the chat box. Otherwise, Mubin, maybe we can also then continue with the vote of thanks in the meantime, because I think we are, you know, it's almost 12:30 and maybe we should also look at winding up. Okay, so any questions or maybe... Does anybody have any questions? Exactly. If anyone want to say maybe one or two quick questions, if there's any questions. Ayush, can you just write down your... Maybe we can take one quick question. Ayush, okay, can somebody unmute him? He's asking to be unmuted. I don't think unmuting will be possible. He can write it in the box. Okay, I think he's okay. Yeah, you can at least, yeah, participants, you can put your comments also, because like Uzma was asking, she wanted to know how you, obviously you filled the form, but then maybe if you could, yeah. So we have some very good comments coming, Uzma. I'm sure you can read them. Yeah, I'll just take one quick question. Shibani, can I just take one question, maybe? Absolutely, you can take a couple of questions if okay, let us see. I mean, I think I missed them. Just a minute. Preeti, can you read any questions coming? I mean, pata nahi mera shayad chat box. There was one. Can anybody read a question by Ayush? He was wanting to ask. I don't know. I cannot see his question actually. Yeah, that's what I'm just thinking. Okay. He's saying he wants to ask question. He wants to unmute. Ayush, you can please write. We cannot unmute you. He There's some has technical. not written anything. Yeah, please write down. Yeah, that's what I was thinking. Maybe I missed. Ayush, can you just quickly write down? Maybe then I can just read one or two. Any of our colleagues who are present here would want to... Questions are rather lengthy. Okay, maybe you can just directly write to Uzma, as she has said. Yeah, so Uzma, you can just share your I have shared my official email address as well. Yeah, please, like you said in the beginning, initially that you would be. So yeah, so any of our colleagues, we have, Uzman, not only just the Women Development Cell members, but we have some of our very esteemed colleagues also present here. So does anybody wants to say anything? Or I think Aditya wants to ask that Uzma has told about 5 Ds, but what government measure should be for speedy action?
he want to ask what she can suggest. Okay. Like अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट जैसा आपने बताया मैम कि लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को खुद, क्योंकि जो हैरेसमेंट वाली चीज होती है ना, ज्यादातर जो लड़कियां फेस कर रही होती है वो नहीं चाहती कि ये थोड़ा बड़े लेवल पर जाए या इसमें गवर्नमेंट या पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल वेज हो सकते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है वो हैरेसमेंट रुक भी जाएगी और जो टारगेट बन रहा था व्यक्ति, कोई भी हो सकता है वो, तो उसको भी थोड़ा कंफर्टेबल जोन मिलेगा और जो हैरेसर था उसकी जो करेज बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं टूटेगी। बेसिकली मोटिव ये है 5D का कि इसमें कोई ज्यादा बड़ा इन्वॉल्वमेंट, कोई फिजिकल वायलेंस या किसी MLA वगैरह या किसी पुलिस का कोई रोल नहीं हो और बातें जो चीजें हैं वो वही की वही सॉर्ट आउट हो जाए और उसको भी ये रियलाइज हो जाए हैरेसर को कि हाँ जो मैं कर रहा था वो गलत चीज थी, इसलिए मुझे रोका गया। और जिसके साथ हैरेसमेंट हुई उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो और उसको ऐसा फील आए कि मेरे लिए कोई खड़ा है। Yes. Yeah, I think we can just, Shabani, what do you say? Can we just? This question has been read, na? Ayush Singh ne jo पूछा था, evidence you presented, हाँ, I think वही question, so maybe we can wind up then, yeah. Okay. So, ma'am, Uzma, the evidences you presented were confirming. Yeah, I think he's asked. Yeah, Preeti has already mentioned that, है ना? ठीक है. Okay. So, yeah. So, as I have been designated to give away the formal vote of thanks, let me just begin by saying that sometimes just talking about something, and what a beautiful beginning. Thank you, Shabani, for arranging this wonderful workshop, because like we also came to know through this workshop while Uzma was presenting that it's very important not to normalize this problem. So when we have started with this kind of discussion and having a workshop on street harassment, I think that itself is a very good and a very positive beginning for our Women Development Cell. And thank you to Breakthrough representatives here. First of all, now, as I convey my thanks, I just want to bring 2-3 points to my students also present here, that with such beginnings, so what impact these kind of workshops and these kind of dialogue and these kind of interventions, like our honorable principal sir, he said in the very beginning, and I think that was a very important point what sir said, that key rules hai, regulations hai, police hai, documents, like what we are talking about, documenting and all, designate and all these kind of things. These things are there, but still these things are happening. So talking about these things and having a workshop on this particular pertinent topic, I think that was very important. So I really think that what sir said was a very important point, and that's why we are having this discussion and we are talking about this. And as I talk and as we speak about this, let me just give you just 2-3 very fresh data, is that a worldwide 5-fold helpline calls have increased. Women are approaching for help, so that the helpline calls have increased 5-fold. This is United Nations data. And also at the same time, we need to see that 40% women are still little reluctant to ask for help. So why I'm giving this, because these kind of workshops and these kind of discussions that we have, it helps in making that 40% increase, that more women will come out and more women will talk about the problems. So having said that, I think I want to convey my thanks to Uzma and to her team, to the organization, the wonderful work that you are doing, Breakthrough, in collaboration with L'Oreal also. And I offer my thanks to our WDC convener, Shibani, then my team members, the other members of our WDC
team, Dr. Nidhi, Dr. Preeti, Dr. Swati, our very esteemed male member also, Rajkumar Bhagatji, he's also here, and Dr. Manisha, and I hope I'm not missing anybody. So these are the members of the WDC team. Thank you to all of them and to all the wonderful participants, our students who are here. I'm sure they've gained a lot from this. And to all our colleagues also, we have many colleagues also. I could see that they are here from various departments of our college. I offer my thanks to them, and the most important thing that we are able to organize such events and have these kind of discussion and dialogues and awareness, and we are getting acquainted to these kind of things. It's all thanks to our principal sir, Professor Gyantosh Kumar Jha. And with this note, I hope I'm not forgetting any names, but even if I'm forgetting, as Shibani said, because of age maybe, so but a heartfelt thanks to your team, Uzma. And Uzma, you're such an inspiration, a girl like you coming and talking. I'm sure you have inspired all of us, and all the best wishes from WDC and ARSD college team, WDC as well as ARSD college. So I wish you all the best, and thank you all, and let us all pledge to take something from here and follow what we have learned and make this world a better place for everyone to live in, especially the women. Thank you so much. Thanks. Also thanks to Shitba and Sushmita. Sushmita made the poster for the event, and Shitba generated the Google link and the registration link, and made the WhatsApp group for the training workshop. So thank you to the student volunteers, and thank you, Uzma. Thank you again. And once again, I would like to say really bottom of my heart that really thanks to all of you who support and to be in the whole session, because कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें जब हमसे रिफ्लेक्ट करती हैं तो हम चाहते हैं कि और जाने अभी इसके बाद क्या आएगा या हम क्या लर्न करने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है कि क्या बोरिंग वही चीजें सुनते रहो, लेकिन जब लोगों को ये पता चलता है कि 5D कोई ऐसा तरीका भी है in the between the session, कि कुछ ऐसा तरीका हम सीखने जा रहे हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम सुनते हैं कि आप ऐसा करो वैसा मत करो, ठीक है, लेकिन आप अगर इन तरीकों को अपनाएं शायद हम स्टैंड ले सकें अपने लिए भी और सामने वालों के लिए भी और सिचुएशन को देखते हुए. So I would love to thanks everybody who support me here, and first and the Shibani ma'am, इनको बहुत सारा थैंक्स मैम कि आपने ये सब अरेंज किया हम सबके लिए और हम सबको एक इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए इनकरेज किया और हमने लिया. आई होप कि हम इसको अपनाएंगे, अब इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी जिंदगी में ताकि स्टैंड ले सकें, और ये कोई नॉर्मल चीज तो बिल्कुल नहीं है. Yes, Shibani, I think it was a very good start for WDC with this workshop. Definitely, we should thank Shibani for I think everything we do to empower women, we are indirectly doing it for ourselves and for our children and for our students. So it is for us. So इसमें I think कोई thank you की बात नहीं है. It is our duty to be doing something of this sort, as as women, as feminists, as just human beings. I think to make the world absolutely. So on that note, I think we could stop. Thank you, everybody. Thank you. Bye. I'll end the meeting now. Yeah. Thank you.